નમસ્કાર. આજે ગુરુવાર સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનની આપણી અઠવાડિક મિટિંગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. એકાદ 2 મિનિટ મોડા છીએ માટે દિલગીર છીએ. ગયા વખતે આપણે ગુજરાતમાં પાણીનું વ્યવસ્થાપન, વોટર મેનેજમેન્ટ ઇન ગુજરાત, એની ચર્ચા કરી હતી. અને આજે એક તદ્દન નવો વિષય જેની બહુ ચર્ચા છે દુનિયામાં, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, અને ટૂંકમાં AI કહે છે બધા. એટલે આપણે તો AI એટલે કંઈ કેમ સમજીએ, ઇન્ડિયન એરલાઇન્સને એક જમાનામાં AI અમે કહેતા હતા. એટલે અમારા જેવી જૂની પેઢી કન્ફ્યુઝ પણ થાય કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ શું છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને લઈને બહુ ચર્ચાઓ છે. ગૂગલમાં જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ બનાવનાર જેફરી હિન્ટને હમણાં રાજીનામું આપ્યું, અને આખી દુનિયામાં એને લઈને ચર્ચા થઈ. એમણે એટલા માટે રાજીનામું આપ્યું કે એને લઈને એની જે નકારાત્મક બાબતો છે, એની નકારાત્મક અસરો છે સમાજ ઉપર, એની ખુલ્લા મોકળાપણે ચર્ચા કરી શકે, બધાને જાણ કરી શકે. એટલા માટે એમણે એમાંથી રાજીનામું આપ્યું, ગૂગલમાંથી. આજે તો ગૂગલ રાજ કરે છે આપણા બધા ઉપર. ગૂગલનો મેપ, ગૂગલનું ગૂગલ લોકેશનને કરો, ગૂગલ ચાલુ કરી દો ને. અને ઘણીવાર મારા જેવા એવું કહે કે સામે જ જવાનું છે, ગૂગલ ચાલુ કરવાની જરૂર નથી. ગૂગલ આમ કરીને આમ પેલો કાના વડા પકડવાની વાત હોય ને, એવો રસ્તો બતાવે. જવા દઈએ, કારણ કે જે ફીડ થયું છે બતાવે છે, એટલે એને શોર્ટકટ છે કે આપણા નાના રસ્તાઓ, ટૂંકા રસ્તાઓ એના વિશે એને ખ્યાલ ના હોય, સ્વાભાવિક છે. જે માહિતી ફીડ કરવામાં આવી છે એને આધારે આ બધું ચાલી રહ્યું છે ને. ઇન્ટરનેટનું જે જાળું છે એ આખી દુનિયામાં વધુ ને વધુ એનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે. એટલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, જેને ચેટબોટ, હવે બહુ બધા લોકો એનાથી વાકેફ છે. નવી પેઢી તો ખાસ વાકેફ છે. પણ જે પેઢી બહુ જ બધી ટેકનોલોજીથી એનાથી, અથવા કોમ્પ્યુટર અથવા મોબાઈલની બહુ મર્યાદિત ઉપયોગ સાથે ચાલે છે, એ લોકો માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એક નવો વિષય છે. પણ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એક પ્રોગ્રામ છે, એ કોઈ બહુ જ મોટી કોઈ ગ્રેટ ઘટના હોય એવું નથી. પણ સાયન્સ ફિક્શનની ફિલ્મો અને સાયન્સ ફિક્શન અને મશીનો કંટ્રોલ કરી લેશે મનુષ્ય જીવનને, એ પ્રકારની વાતો 100 વર્ષ પહેલાં પણ થયેલી છે. એટલે એની આગળ જ વિજ્ઞાનનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, અને ટેકનોલોજીમાં એનો એપ્લાઇડ જે ઉપયોગ છે એને બંનેને આપણે સમજી નથી શકતા. એટલે એક ચિંતાની વાત આવે છે. ચેટ જીપીટીની બહુ ચર્ચાઓ ચાલી કે તો PhD થીસીસ પણ લખી દે, આ કરી દે, તે કરી દે. એટલે ઘણી કોલેજો, ઘણી એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સે પરદેશમાં પણ, અમેરિકાના અમુક દેશોમાં પણ એની ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો. પણ બહુ સરસ ઉદાહરણ આપું કે ચેટ જીપીટીને પૂછ્યું અમે લોકોએ કે મૃદુલાબેન સારાભાઈ વિશે મારે નિબંધ લખવો છે, મને લખી આપો ને. તો એ ના લખી શક્યું, કારણ કે ફીડ નથી થઈ જે વસ્તુ, એ ના કરી શકે. એટલે ચેટ જીપીટીને બધી બહુ ચર્ચાઓ છે, પણ એની મર્યાદા પણ સમજવાની એ છે. ડરી જવાની જરૂર નથી. મશીનો કબજો કરી લેશે મનુષ્ય જીવનનો, પણ એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કોણ છે એને માટે કરે છે, સૌથી અગત્યની બાબત છે. આપણે ત્યાં બે એક્સ્ટ્રીમ, એટલે કે બે અંતિમ ઉપાયોની વાત થતી હોય છે, કે બે અંતિમ દ્રષ્ટિકોણ હોય છે. એક છે ટેકનોલોજી વાપરો જ નહીં, એ તો આમ છે તેમ છે. એક જમાનામાં યંત્રો સામે પણ જે રીતે વિરોધ આવ્યો, યંત્રોને નહીં, યંત્રોને કંટ્રોલ કરવાની વાત હતી, એને બદલે યંત્રોનો ઉપયોગ જ ના કરો. અને બીજું એ છે કે બધું મશીનોને સોંપી દો, એટલે નોકરીઓ પર અસર થશે. જ્યારે કોમ્પ્યુટર આવ્યા ત્યારે પણ આપણે ત્યાં સવાલો આવ્યા. આપણે ત્યાં બહુ બધા સફાઈના સાધનો આવ્યા, છતાં પણ સફાઈ કામદારોના મૃત્યુ થાય. કારણ કે એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કોણ છે, કોના હિતમાં કરે છે, એ સૌથી પાયાની વાત કદાચ આ બધી ચર્ચાઓમાં ગાયબ છે. વિશાલભાઈ બહુ યુવાન મિત્ર છે અને બહુ બધી બાબતોમાં રસ લે છે. એમને આ વિશે બોલવાની ઈચ્છા હોવાથી અમને પણ થયું કે ચાલો યુવાન મિત્રો બોલે, અને બધા લોકો વધારે આ ટેકનોલોજીથી વધારે એક્વેન્ટેડ હોય છે, એટલે વધારે સારી રીતે કહી શકશે. વિશાલભાઈ આમ એન્જિનિયરિંગ, કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ ભણેલા છે, અધૂરું છોડેલું છે પણ ભણેલા છે, એના વિશે જાણકાર છે. અને એટલે જ આ વિષય વિશે આજે ચર્ચા કરવાનું નક્કી કર્યું. કારણ કે કેટલાક વોરેન બફેટ, કદાચ હું બરોબર પ્રોનાઉન્સિએશન ના પણ કરી શકું, પણ એમની વિષયમાં મૂડીનું બજાર જે છે એમની બોલવાલા છે. અને એમણે કહ્યું કે AIથી ડરવાની જરૂર છે, એનો વિરોધ કરવો જોઈએ, ના બનાવવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ. એની પણ બે છાવણીઓ છે. એક ઓપન સોર્સની પણ વાત છે,
એ પણ બહુ બધી ચર્ચાઓનો વિષય છે. ભૂતકાળમાં આ બધી બહુ ચર્ચાઓ થયેલી પણ છે. કોમ્પ્યુટર આવ્યા ત્યારે કોમ્પ્યુટરની લેંગ્વેજને લઈને પણ બહુ ચર્ચાઓ થયેલી છે. માઇક્રોસોફ્ટની મોનોપોલીની સામે પણ ઓપન સોર્સની પણ ઘણી ચર્ચાઓ થયેલી. આપણે બધા એ ટેકનોલોજીની એ બધા ચર્ચાના એ પાસાથી એટલા પરિચિત નથી, એટલે આપણે એ ટેકનોલોજી કાં તો વાપરો, સંપૂર્ણપણે એને સરેન્ડર કરો, અથવા તો ટેકનોલોજી વાપરો જ નહીં. એવા બે અંતિમોની વચ્ચે ઇન્ડિયન એક્સેસમાં બહુ સરસ લેખ કોઈક કલમિસ્ટે લખ્યો હતો કે કોઈ બે અંતિમોની જરૂર નથી, આપણે એની વચ્ચે મનુષ્ય સભ્યતા માટે જે વિવેક, એના ઉપયોગની, અને જ્યાં સૌથી વધારે જરૂર છે ત્યાં ઉપયોગ જરૂરથી કરવો, પણ મનુષ્ય સભ્યતાનો જે વિવેક છે એની તો એની ઉપર હશે જ લગામ. એ રીતે હું આ વાતને જોઉં છું. ગુજરાતીમાં આજે એટલે ચર્ચા કરીએ છીએ કે એને લગતા હિન્દી શબ્દભંડોળ અને અંગ્રેજી શબ્દભંડોળ વિશે એટલી સક્ષમ મારી તો સક્ષમતા નથી, અને વિશાલભાઈ પણ ગુજરાતીમાં જ વાત કરશે, કારણ કે આજે બધા જે મિત્રો આપણા સાંભળવા ઉત્સુક છે એ બધા અલગ અલગ ઉંમર અને એમાં તબક્કાના છે, એટલે વિશાલભાઈ વાત કરશે. વિશાલભાઈને વિનંતી છે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને આપણું ભવિષ્ય વિશે વાત કરવા. ના પણ કંઈ નહીં, હિન્દીમાં બોલી શકો નહીં, અગર વોકેબ્યુલરી. ओके जी नमस्ते। तो अभी हमने देखा ही होगा कि एआई सभी न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये एआई है वो पूरा कंट्रोल कर लेगा या फिर वो सिर्फ बातें हैं। इसमें दोनों साइड हमें देखने की ज़रूरत है। उससे पहले हम समझते हैं एआई है क्या। अभी हम सबको मालूम है कि जीवन का सिद्धांत है परिवर्तन। धीरे धीरे हर साल परिवर्तन आता जा रहा है, तो इसमें हम परिवर्तन देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे जो परिवर्तन आ रहा है बहुत फास्ट आ रहा है, जिसको हम पहले एक टेक्नोलॉजी बनने में 10 साल लगते थे, 15 साल लगते थे, आज 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में एक अलग अलग टेक्नोलॉजी आती रही है, जिससे पूरा वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एआई क्या है? एआई को पहले हम सिंपल भाषा में समझना चाहे तो उसको समझने के लिए हम सिर्फ एक जो पहले मोबाइल यूज़ करते थे उसका ही उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि उसमें आपने 9 दबाया तो 9 लिख के आया, 1 दबाया तो 1 लिख के आया। तो उसमें क्या हुआ कि आपने जो उसको कमांड दिया उसके हिसाब से उन्होंने उसमें लिखा। वैसे ही उसका आगे का है कंप्यूटर में आप जैसे टाइपिंग करोगे ऐसा आएगा, फिर वॉइस कमांड आएगा, ऐसे अलग अलग सब कमांड्स देंगे, इस तरीके से होता है। तो एआई है उसका ही एक एडवांस लेवल है। अभी आपको और आसान भाषा में भी और दूसरा उदाहरण देके भी मैं समझा सकता हूँ कि जैसे आप किसी छोटा बच्चा होता है, उसको हम जैसे कमांड देते हैं वैसे वो काम करता रहता है। तो इसी तरीके से एआई भी एक हम बोल सकते हैं कि हम जैसे कमांड देंगे वो ऐसा काम करके हमें देगा। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके भी 2 प्रकार हैं, एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जनरल सब काम कर सकते हैं, और नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सब अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करने के लिए बनाया गया है। अभी एआई में हम देखेंगे तो न्यूज़ में आया था कि 8.5 करोड़ जॉब जा सकती है एआई के कारण। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है सिर्फ ये टेक्नोलॉजी कि 8.5 करोड़ लोगों की जॉब जा सकती है। तो इसको समझना चाहिए हमें, और ये भविष्य में क्या क्या इम्पैक्ट करेगा इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। एआई है वो चलता है डेटा पे, तो जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने ही वो लोग ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। इसीलिए ऐसा भी बोला जाता है डेटा इज़ न्यू ऑयल, कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे सभी जगह डेटा की मारामारी है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सब डेटा लेने के लिए ही आतुर होती है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर और अन्य। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी डेटा के पीछे पड़ी हुई है। आपको मालूम हो तो आधार कार्ड से ये लिंक करो, वो लिंक करो। तो उसके पीछे का मेन एजेंडा क्या है कि लास्ट में उनके पास सारा डेटा है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, जिससे वो ट्रैक कर सके और सर्वेलेंस कर सके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यही काम है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा ले और उसका यूटिलाइज कर सके। अभी इसमें अलग अलग
बहुत सारे ऐसे हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा सेक्टर्स है कि एक एक सेक्टर पे अलग अलग उनका इम्पेक्ट आ सकता है। जैसे मेडिकल हो गया, फिर अकाउंटिंग हो गया, फिर इंजीनियरिंग हो गया। मतलब अभी आप आगे का जीवन में कोई भी सेक्टर देखेंगे उसको एआई से जोड़ के ही आपको देखना पड़ेगा। ऐसा कोई सेक्टर नहीं रहेगा जिसमें एआई का इंटरप्शन ना हो। आप कोई भी काम करते हो, कंटेंट राइटिंग का करते हो, ऑथर हो, या फिर मार्केटिंग का करते हो, बिजनेस करते हो, सारी चीज़ों में एआई अपना रोल डालेगी। तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा। दूसरा, लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो यूज़ नहीं करेंगे तो उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे, और नहीं यूज़ करोगे तो आप आगे जाके फिर रिग्रेट फील कर सकते हैं कि ये इसका हमें फ़ायदा मिल रहा था और हमने लिया नहीं। अभी हम देखेंगे कि बिज़नेस में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही, जिन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है ना, वही लोग अभी तक सबसे ज़्यादा आगे आए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं बोल रहे कि एआई खतरनाक है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसको हमें समझ के कोई गलत हाथों में ना आ जाए उस तरीके से हमें इसको समझना चाहिए। जैसे कि अभी जो एआई में जो रिसर्च कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इसमें प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, वो सब बड़ी बड़ी कंपनी है। तो उन लोगों का इंटेंशन क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो उन लोगों को प्रॉफिट के हिसाब से ही वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से उसको लोगों के सामने रखना है जिससे हम उनके पास से पैसा ले सकें। जैसे अभी हमको मालूम है कि फेसबुक है, फेसबुक हमें यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, पर बाद में वो हमारा डेटा लेके दूसरी कंपनी को सेल कर देते हैं और वहाँ से प्रॉफिट वो कमा लेते हैं। इसमें भी ऐसा हो सकता है, और हमें हमारा जो डेटा होता है उसको लेके वो मिसयूज़ कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये पूरा सेंट्रलाइज बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, तो उस पर कंट्रोल जिसका रहेगा वही फिर आगे कैसे क्या उसके पास से करवाना है वो डिसाइड करेगा। तो इसके ऊपर विचारना करने की ज़रूरत है कि कैसे इसको डिसेंट्रलाइज बनाया जा सके जिससे कंट्रोल ना हो सके। और जो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए काम ना करे, मतलब जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट कैसे किया जा सके, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाए तो उसका इम्पेक्ट आएगा। क्योंकि अभी हमें मालूम ही है, कितनी भी अच्छी सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, जो प्रॉफिट के लिए होता है उसमें ज़्यादातर शोषण ही हो जाता है। अभी बात करें कि ये कैसे कैसे इम्पेक्ट ला रहा है कौन से सेक्टर में। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पहले के समय में लोग पेंटिंग करवाते थे एडवर्टाइज करवाने के लिए दीवार के ऊपर, तो उसमें 2-3 दिन लग जाते थे। फिर बैनर्स आए, बैनर्स में डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर में, वो 1-2 घंटे में हो जाता है। फिर अभी डिजिटल मार्केटिंग चलता है, डायरेक्ट ऑनलाइन पोस्टर बना के 5-10 मिनट में तैयार हो जाता है। पर एक अच्छा सा पोस्टर बनाना हो जो एकदम स्पेसिफिकली हो, यूनिक हो, तो उसमें 4 से 5 घंटा लगता है। पर ये एआई आने के बाद सिर्फ आप दुनिया के किसी भी आर्ट को सिर्फ 2 से 3 मिनट में बना सकते हो। ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, एक पोस्ट बनाने के, अच्छी पोस्ट बनाने के 5,000 10,000 ऐसे अलग अलग उनका प्राइस रहता है, और ये एआई फ्री में दे देता है। तो इससे जो यूथ का जो ग्राफिक डिज़ाइनर में जो करियर बना रहा है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा हो ऐसा दिख रहा है। इससे इतना बड़ा आप कोई भी अपने दिमाग में जो विजुअलाइज कर सकते हो वो इमेज, सिर्फ आप कीवर्ड टाइप करो कि अमिताभ बच्चन भजन गा रहा है, तो वो ऐसी इमेज क्रिएट करके दे देगा। जबकि कोई लोगों को ऐसे बनाने देंगे तो 5 दिन 6 दिन 10 दिन ऐसा अलग अलग टाइम लग सकता है कि ये बहुत बड़ा आइडिया है, उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगा उसको सोचने में ही बहुत सारा टाइम लग सकता है। पर एआई सिर्फ 5 मिनट में बना देगा। दूसरा, एआई के पास ऐसा अभी आप बोल सकते हो वो इंटरप्रेट कर सकता है कि कैसे आप कोई इमेज उसके सामने रखो कि एक बिल्ली है वो दूध पी रही है, उसको ऐसे दिखाओ कि ये वो फोटो दिखाओ, तो वो खुद इंटरप्रिटेट कर सकती है कि बिल्ली दूध पी रही है। जैसे छोटा बच्चा को हमको समझाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे है, तो वो खुद तो आगे जाके वो सिर्फ ऐसे देख के, सिचुएशन देख के समझ सकता है कि आगे उनका इंटेंशन क्या है, कैसी परिस्थिति है। ये हुई ग्राफिक डिज़ाइनर की बात। फिर कंटेंट राइटर कि कैसे ब्लॉग लिखना है, कैसे वो बुक्स लिखनी है,
तो उसके लिए भी लोगों को बहुत टाइम लगता है सोचने विचारने में। जबकि ये क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऐसे अलग अलग वेबसाइट पे इंटरनेट पे पूरा कंटेंट भरा हुआ है, तो उसमें से जो बेस्ट कीवर्ड्स होते हैं वो उठा के हमको बना के देता है, तो वो एकदम फ्री में हो जाता है। जबकि बाहर उसके लाखों रुपए कंसल्टिंग फीस लेते हैं सिर्फ एक स्लोगन बनाने की, या फिर उसके ऊपर कंपनीज का एक पूरा पर्पस कोर वैल्यूज़ बनाने की, जो ये सिर्फ 5-10 मिनट में करके दे देता है। इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन उसको देना पड़ेगा। आप लिखो प्रॉपर स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ कि मुझे ये बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसी इंफॉर्मेशन को आपको पूरी डिटेलिंग में देगा। पर बात यही है कि जितना इंटरनेट पे अवेलेबल होगा उसी में से वो आपके बना के देगा। फिर ऐसे ही मेडिकल इंडस्ट्री में भी एआई का बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है। अभी सबको मालूम हो तो स्मार्ट वॉच का बहुत चल रहा है कि स्मार्ट वॉच में आपकी हार्ट बीट, शुगर और स्ट्रेस लेवल कितना चले वो सब दिखाते हैं। तो एआई उससे आगे का सोच रहे हैं कि कैसे स्ट्रेस उनका है, क्या क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरी है। आगे जाके फ्यूचर में ऐसा प्लान होगा कि आप प्लेट होगी आपकी खाने की, उसमें दिखाएगा कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हो, कितनी खा रहे हो। फिर आपके घर में एआई वाला डस्टबिन होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि आप कितना खाया, कितना फेंका। फिर वहीं से वो लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपके घर में कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। स्मार्ट डस्टबिन, कभी ऐसा सोचा था हमने कि डिजिटल डस्टबिन होगा जो डिसाइड करेगा कि आपके घर में क्या ज़रूरत है, वो उससे डिसाइड करेगा। फिर ये जो मेडिकल का बोल रहा था मैं, तो एक तो ये हेल्थ का एस्पेक्ट हो गया। फिर दूसरा कि आपके जो बॉडी चेकअप करते हैं उसमें वो लाइव रहेगा कि कितना बीपी है, कितना शुगर है, वो सब। तो उससे वो लोग आगे ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको लगेगी, वो ऑटो सजेस्ट कर देता है। तो ये मेडिकल में। पर इसमें मैं सोचता हूँ कि ये अभी तक जो फार्मा कंपनी है वही पूरा कंट्रोल करती है, तो वो एआई को ऐसा सेट कर सकती है कि वो फार्मा कंपनी के ही दवाई को प्रमोट करे। जैसे कि आपको ब्लॉकेज है तो उसमें आपको ऐसा नहीं बोलेगी कि आप अदरक खाओ, लहसुन खाओ, वो आपको कोई दवाई सजेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे से उनको फार्मा कंपनी को प्रॉफिट रहेगा। तो ऐसे अल्टरनेटिव एआई पे हमें काम करना चाहिए जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करे, क्योंकि इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको सजेस्ट करे, आपको लगे कि मुझे फ्री है, पर वहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर उनका पीछे से बिजनेस वो क्रिएट कर सकते हैं। और डॉक्टर्स को भी इसके बारे में बहुत सारा उत्सुकता है कि आगे जाके ये एआई वाले टूल्स हो गए, रोबोट्स हो गए, वही ऑपरेशन भी कर पाएंगे और लेज़र ऑपरेशंस कर पाएंगे। कैंसर्स, हार्ट की सर्जरी है, वो सब भी रोबोट्स के द्वारा की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है। दूसरा है लॉ अभी कोर्ट में हमें मालूम है कितने सारे केसेस चलते हैं, तो इसमें भी एआई का बहुत बड़ा आगे जाके पार्टिसिपेशन रहने के लिए केस लड़ेगा, आपको ड्राफ्टिंग करके देगा। तो वकीलों को भी ये बहुत आगे जाके मदद रूप होने वाला है कि कैसे कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है लॉ के द्वारा। और इसमें वो लोग बताएंगे, मतलब ड्राफ्टिंग है, फिर कैसे फ्री में भी कैसे सलाह देगा बोर्ड की क्या क्या आपको एडवाइस लेनी चाहिए, कौन से प्रकार। इसका ये तो अच्छी बात हुई, उसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, उसमें जो प्रोग्राम किया होगा वही बताएंगे। तो कोई अच्छी पर्सनालिटी हो, उसमें ऐसा प्रोग्राम कर दिया है कि इसके लिए आपको अच्छे से मतलब बायस डिसीजन लेना है, तो फिर वो ऐसा बोल सकता है कि ये निर्दोष है, पीछे से वो निर्दोष हो सकता है, तो पीछे से उन्होंने गुनाह किया हो सकता है। तो ऐसा भी इसमें ट्रिक्स यूज़ होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी मतलब उसमें करप्शन नहीं हो सकता है, उसमें भी बहुत बड़ा करप्शन हो सकता है, क्योंकि उसको जो कंट्रोल करने वाला है उसमें भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये हो गया लॉ। और पुलिस और आर्मी में भी एआई का यूज़ बहुत होने वाला है। जैसे कि हमने बात किया डेटा, तो ये सर्वेलेंस पूरा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे हर एक लोगों के ऊपर ये लोग ध्यान रख सके। और आर्मी भी इसके ऊपर काम कर रही है कि कैसे सर्वेलेंस बढ़ाया जा सके, पेट्रोलिंग कैसे बढ़ाया जा सके। उसके लिए आगे जाके रोबोट डॉग्स आएंगे
कि रोबोट डॉग्स ऐसे आपको घूमते दिखेंगे, वो सबको देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। अगर आप उसके रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको स्कैन करके वहाँ पे ऑफिस में आपकी फ़ोटो भिजवा देगा, फिर वहाँ से एक्शन होगा। ऐसे ही फिर पेट्रोलिंग के लिए अलग अलग रोबोट्स होंगे जो उसके ऊपर काम करेंगे। अभी सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए लगा रहे, पर इसमें भी पीछे ना पीछे कुछ हिडन एजेंडा है कि लोगों को कैसे सर्वेलेंस किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। जैसे कोई आगे हमारा विरोध करे तो उसको कैसे दबाया जा सकता है, वो उसके लिए ये सिस्टम बनाया जा रहा हो ऐसा लगता है। क्योंकि हमें मालूम ही है कैसे पूरा जो सिस्टम है उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं वो छूट जाते हैं, और जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनको फंसा दिया जाता है। तो ये एआई में भी ऐसा भरपूर होने वाला है। लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जो इनजस्टिस है वो कम हो जाएगा, इससे और बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें भी ऐसी ब्लॉकचेन और ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है जिससे वो लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते। और सर्वेलेंस की बात ये है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगेगी उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी क्या, फेशियल रिकग्निशन, कि उससे आपका फेस पता चल जाएगा कि आप कौन है, कहाँ पे क्या करते हैं। तो ये बहुत ही हमारी प्राइवेसी के ऊपर बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि आगे जाके वो लोग फिर डिसाइड करेंगे कि उनके पास सब डेटा रहेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, उनके सिस्टम के आप खिलाफ जा रहे हो तो पूरा का पूरा ये लोकशाही के विरुद्ध हो सकता है, ऐसा हमें दिख रहा है। और ये फेशियल रिकग्निशन के लिए ये जितने भी हमारे प्रूफ्स होते हैं उन सबको एक कर देंगे, पान कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, वो सबका एक डिजिटल आईडी देंगे और उसी से फिर पूरा कंट्रोल किया जाएगा आप लोगों को। फिर जैसे ही उनके कुछ गलत लॉस आ गए तो आप उसको विरोध करने के लायक नहीं रहेंगे। उसको बोले देंगे कि आपको ये करना है तो आपका ये कार्ड बंद हो जाएगा, फिर आप कुछ भी ले नहीं सकेंगे, दे नहीं सकेंगे। आपको कार्ड चालू रखना है तो फिर हमने जो बोला है वो आप करते रहो। तो पूरी तरह से ये डिक्टेटरशिप को भी लाने का ऐसा इसके माध्यम से प्लानिंग चल रहा है। और ये हवाई बात आप सबको लग सकती है, पर इसका बेस्ट मॉडल है चाइना। ये सब चाइना में अभी हो रहा है। वहाँ पे आपको कुछ लेना देना हो तो आपका फेस देख के आप ले सकते हो। फिर दूसरा कि वहाँ पे सभी जगह पे फेशियल रिकग्निशन चल रहा है, और जो भी काम करना हो, अभी आप लॉकडाउन देखा हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो चाइना में था, क्योंकि वहाँ पे सारा रोबोट्स भी ड्रोन्स और वो फेशियल रिकग्निशन था, जिससे कैसे लोगों को कोई भी रूल तोड़ता है तो वो तुरंत उसके नज़र में आ सकता है और उसे सज़ा दी जा सकती है। तो ऐसे वो पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं जिससे लोगों को ट्रैक किया जा सके और कोई उनके विरुद्ध ना जा सके। और हम सबको मालूम है उनका प्लान ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बातें मानने चाहिए, हमारे ऊपर सवाल नहीं करने चाहिए। तो ये उसको भी एक दबाने का ये बहुत बड़ा उनके लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो कि ये कंट्रोल होने के लिए भी यूज़ हो सकता है। अभी लोगों को ऐसे ही भ्रमणा में जीते कि ये तो हमारे लिए अच्छे के लिए ही है, पर इसको सिस्टम हमारे विरुद्ध भी यूज़ कर सकती है। और जो पेट्रोलिंग होता है उसमें भी जैसे पुलिस करती है, तो वो पेट्रोलिंग के लिए ये लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे जाके वो लोग ऐसे नियम भी ला सकते हैं कि आप घर में 5 किलोमीटर के बाहर नहीं घूम सकते। अगर आप 5 किलोमीटर के बाहर घूमेंगे तो जैसे ये मैंने बोला, रोबोट डॉग या कोई रोबोट होगा वो आपको ट्रैक कर लेगा। आपके फेशियल रिकग्निशन से आपका आईडी ट्रैक हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि ये इंसान यहाँ से यहाँ तक घुमा था। तो फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर अलग अलग कार्यवाही करेंगे। तो जैसे ही हमारी जो वाणी स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। जैसे कि फेसबुक में आपने सुना होगा कि एक वायोलेंस वाला फीचर है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम के विरुद्ध या फिर किसी और के विरुद्ध जो सच बोलते हो तो उसको वायोलेंस की कैटेगरी में डाल के या फिर फैक्ट चेक की कैटेगरी में डाल के कि ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करके आपकी पोस्ट को दबा देते हैं, जिससे वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता। और डेटा पूरा इंटरनेट पे ऐसा ही है, जिससे कैसे ये जितने भी बड़े बड़े हैं, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, उन सब पे
बिजनेसमैन लोगों का कंट्रोल रहता है, तो उनके विरुद्ध कुछ काम ना हो उसके लिए ही वो लोग ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि उनके विरुद्ध ऐसा कुछ आए पोस्ट तो डायरेक्ट वो डाउन आ जाए। हम सबको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कुछ ऐसी सच्चाई बाहर लाने की प्रयास करते होगे ना, तो फेसबुक पे ज़्यादा वायरल नहीं होगा, जबकि एंटरटेनमेंट की चीज़ बहुत वायरल होती है। तो क्योंकि उसका एल्गोरिदम ही ऐसा सेट किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनोरंजन में व्यस्त रहे, जो सच्चाई है वो बाहर ना आए। तो एआई पूरा इसके तरफ अभी इतना ज़्यादा नहीं है, पर एआई आ जाएगा, फिर इसके पास तो इतना डेटा का सोर्स रहता है कि एक ही बार में लाखों लोगों को ट्रैक कर सकता है। तो जैसा ही आपने कोई कीवर्ड लिखा तो वो पकड़ लेगा और वो पोस्ट डाउन कर देगा। तो वो पूरी जो स्वतंत्रता है, जो लोगों तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच सकती। जैसे हमें मालूम है अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कितना मीडिया का और सोशल मीडिया का कितना बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ था, और उसी के आधार पे लोगों ने ऐसे सवाल उठाए थे फेसबुक के ऊपर कि आपने डेटा ये यहाँ से चोरी किया, ऐसे कैंपेन रन किया जिससे मैनिपुलेशन हुआ है। तो ऐसा एआई आने के बाद बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है और उसे आप ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई अभी ऐसी न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प का सपोर्टर्स थे, उन्होंने ऐसा बोला था तो वो वायरल किया था, मतलब उसने बोला नहीं था फिर भी ऐसे वायरल हो गए। फिर बाइडेन का भी ऐसा हुआ था, तो उन लोगों ने किया नहीं था, पर पीछे से कौन लोग करता है वो वायरल हो जाता है पूरा। तो उससे बहुत बड़ा लोगों को मैसेज नहीं पहुंच सकता कि जो सच्चाई है वो बाहर नहीं आ सकती, और फेक न्यूज़ वायरल होने में देर नहीं लगती। दूसरा है ये जो एआई है उसकी आपने सुना हो चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में आप जो भी सवाल लिखोगे उसके जवाब मिलेंगे। तो उसमें भी एक बात ये है कि वो सिर्फ वही जवाब देता है जो उसमें डाला हो। तो आगे जाके वो लोग अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो 2021 तक की दे रहे हैं, उसके आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो आगे वो ऐसा बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी 4 में सब अपडेटेड वर्जन आएगा। और दूसरा कि अभी आप जो बोलोगे उसके हिसाब से होगा। आप बोलोगे ऐसे ऐसे फ़ोटो बना के दो तो ऐसा फ़ोटो बना के देगा, और आगे जाके ऐसी नई आप जो भी कमांड दोगे वो आपको मिलेगा। आपने कल्प वृक्ष का सुना होगा, ऐसा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वो उसके लिए 3D प्रिंटिंग भी एक आता है कि अभी जो सिविल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो लोग डिज़ाइन घंटों में बना सकते हैं पूरी बिल्डिंग की, जिसको बनाने में महीनों लग जाते हैं। और फिर उसको जो बनाना है उसके लिए भी आर्टिफिशियल मशीन्स है कि कैसे वो मशीन्स के द्वारा वो मशीन्स अपना काम करते रहेंगे और वो खुद ब खुद बिल्डिंग बन जाएगी। ऐसे ही 3D प्रिंटिंग में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे ग्लास है, फिर प्लेट है, ऐसे कोई भी घर में यूज़ होने वाली वो सब भी 3D प्रिंटिंग किससे बन सकते हैं। सिर्फ आप कंप्यूटर में टाइप करो, ऐसे प्रोग्राम करो तो ऐसा ऑब्जेक्ट आपको बना के वो लोग दे सकते हैं। और मेडिकल में ये बात बतानी रह गई कि वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे ऑर्गन्स भी बना सकते हैं कि बॉडी को देख के उसके अंदर क्या खराबी है और उस ऑर्गन पे कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑर्गन, उसको बना के उसके अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। और दूसरा जो अभी जो लोगों को बच्चे पैदा कर रहे हैं वो इंसान के पेट से आ रहे हैं, पर आगे जाके एआई से वो लोग बच्चे को टेस्ट ट्यूब में तो करते ही है, पर ऐसे एक तो लाइफ करके बोलते हैं, उसमें बाहर ही वो बच्चा पैदा कर पाएंगे। तो उसको कैसे कमांड देना है, उसको कैसे नर्चर करना है, वो लोग डिसाइड करेंगे। वो बच्चे के अंदर जो प्रोग्राम डालेंगे वैसा बच्चा उसको पेरेंट्स को मिलेगा। तो इसमें ऐसी बात है कि आगे जाके वो बच्चा मतलब कोई गलत कमांड दे दिया तो वो पूरा बच्चा जो निकलेगा वो क्या नुकसान कर सकता है उसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और जितने भी ये टूल्स है एआई के टूल्स, वो काम 100 लोगों का काम एक कर देता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है और आगे जाके ये बढ़ता ही जाने वाला है। ऐसा बोला जाता है सिंगुलैरिटी इज़ नाउ,
मतलब पूरा वर्ल्ड है वो अभी एक एक डॉट पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा इनका पूरा प्लान है। तो जो मेन है वो सेंट्रलाइजेशन है। तो वो सेंट्रलाइजेशन कैसे ग्राउंड लेवल के लोगों के हाथ में आ जाए, ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि अभी अभी जो जितने भी एआई के लोग हैं वो सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक ध्यान रखने की बात ये है। फिर रोबोट्स, अभी आगे जाके जितने भी रोबोट्स ही सब काम करने वाले हैं। आप कोई भी चीज़ का नाम दे दो उसमें सब जगह पे रोबोट्स। जो बड़े बड़े चैम्पियंस होते हैं जैसे चेस में है, फिर टेनिस में, उसके सामने भी उनको रोबोट्स ने हरा दिया है। ऐसे रोबोट्स बन के आ रहे हैं। तो इतने माहिती वाले रोबोट्स आ रहे हैं, इतने इफ़ेक्टिव रोबोट आ रहे हैं कि आगे जाके फिर इंसान को ऐसा इन्फीरियर फील हो सकता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, कि सब काम वो कर सकता। और मतलब फिर इंसान के लिए कोई काम ही नहीं रहेगा। फार्मिंग है तो फार्मिंग में भी 0 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जो बीज है या दवाई का छंटकाव है वो ड्रोन्स से होगा। फिर जो सीडिंग है वो सब रोबोट से होगा। ये सब टेक्नोलॉजी ऐसे सुनने में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत देर है, पर ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ऐसा भी कह रहा है कि 2025 तक बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी होगी इसके कारण। दूसरा है रोबोट जो इंसान की तरह दिखता है, ऐसा भी रोबोट्स बन रहे। ऐसे रोबोट्स लोगों को मालूम नहीं है पर ऐसे रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको बहुत जगह पे स्पीच देना जाना होता है, तो वो रोबोट को रख के दे देते हैं और लोगों को पता नहीं चलता। और आगे जाके इसके ऊपर भी बहुत काम होने वाला है। तो डुप्लीकेट लोग बना के भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर ये जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने की बात हुई, तो सोशल मीडिया पे अभी सारा सेंट्रलाइजेशन चल रहा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और इसी के द्वारा जो मैंने आपको आगे बताया कि आईडी आएगा, वो आईडी को आपके सोशल मीडिया से कनेक्ट कर देंगे। फिर आप जैसी पोस्ट करोगे किसी के मतलब सिस्टम के विरुद्ध या फिर, तो उससे वो ट्रैक कर लेगा, फिर आपके पॉइंट्स घटा देगा। ये पूरा पॉइंट बेस्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जो हमारा गुलामों वाला कानून फॉलो करे उसको हम ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, जो हमारा मतलब गलत कानून भी फॉलो नहीं करेंगे उसको हम सज़ा देंगे। तो ये सोशल मीडिया से पूरा कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसको वन कार्ड बनाना चाहते हैं। तो इस वन कार्ड का भी हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि आगे जाके ये एक कार्ड आएगा जिससे ही आपका पूरा सोशल मीडिया चलेगा। जितने भी प्रूफ है आपके गवर्नमेंट वो भी उसके ऊपर चलेंगे। जो आप पैसा अर्न कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, वो भी उसके आधार पे ही होगा। इसीलिए आप देखोगे कि कैश मनी है, कैश मनी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सब लोग डिजिटल यूज़ कर रहे हैं। तो इसके पीछे का एजेंडा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल होगा। डिजिटल ज़्यादा होगा तो ट्रैक कर पाएंगे, सर्वेलेंस कर पाएंगे, और उसके आधार पे फिर आगे जाके वो आपका पेमेंट स्टॉप भी कर सकते हैं कि ये हमारे विरुद्ध काम कर रहा है तो इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए। और ये सब तो अभी की बात हुई है। अभी एडवांस एआई की बात करें तो उसमें इनका प्लान है कि मानव और मशीन को जोड़ दो। तो आगे जाके हमें पता है जैसे कि लोगों को ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं तो उसमें कैसे रोबोटिक ऑर्गन्स डाला जा सके। फिर किसी का हाथ कट गया है तो कैसे रोबोट का हाथ डाला जा सके। फिर किसी का ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन चिप डाल सकते हैं। फिर वो ब्रेन चिप अलग अलग डाल सकते हैं जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो। मतलब आप पूरा सपने में ही चले जाओगे वास्तविक दुनिया से अलग, ऐसा भी हो सकता है। फिर कोई मरे हुए लोग हैं जिनकी आपको याद सताती है तो उसका पूरा डेटा डालोगे आप, तो उससे आप वो आपके सामने है, वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा पूरा इल्यूजन वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे वो लोग मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि वो आपको पूरा इल्यूजन में रखेंगे। तो एआई की ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को इल्यूजन में कैसे रखा जाए, उसका इन लोगों ने पूरा प्लानिंग करके रखा है। मनोरंजन में ही आप पूरा टाइम वेस्ट करो अपने के लिए या समाज के लिए कुछ काम ना करो, ऐसा उसमें से कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा या वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा कि आप भी ऐसा काम करो। ऐसे ही मैंने जो बोला कि एक आइडिया आएगा जिसमें सारे प्रूफ रहेंगे, जो आप आगे कुछ भी करना वो सब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आ जाएगा चिप, उसका अपग्रेड फॉर्म आ जाएगा चिप।
तो उस चिप में ही पूरा डेटा रहेगा कि आप जो भी करते हो उसका। फिर अभी मोबाइल से हम सबको मालूम ही है कि मोबाइल से किसी को भी कहीं पे भी उनका ट्रैक कर सकते हैं। तो मोबाइल दूर रख देंगे तो फिर वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे, पर एक बार चिप लगा दिया बॉडी में तो फिर 24 घंटे वो हमारे को ट्रैक कर पाएंगे। फिर हम क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ कहाँ पैसा स्पेंड कर रहे हैं, हमारा थिंकिंग क्या है, वो सब उस चिप के आधार पे वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। और उसी के आधार पे फिर आप ये चिप है तो जो काम मोबाइल कर सकता है वो वही ये चिप कर सकती है। आपको फ़ोन लगाना है तो ऐसे चिप लगाइए तो वहाँ से फ़ोन कर सकते हो। आपको वीडियो कॉल करना है तो ऐसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि शॉर्ट में कि जितना भी आप काम मोबाइल लैपटॉप से कर सकते हो वो सब काम सिर्फ एक चिप से होगा। और ये चिप के द्वारा ही फिर लोगों को आगे इतनी आदत लग जाएगी कि फिर उनको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे हमें टास्क दिया जाता है कि आपको, जैसे कि फेसबुक पे दिया जाता है कि आपको इतने लाइक्स चाहिए तो ऐसे ऐसे आप करोगे तो आपकी पोस्ट ज़्यादा वायरल होगी। ऐसे इसमें भी चिप में फिर ऐसे पॉइंट्स रखे जाएंगे कि आप गुड सिटीजन के नाम पे मतलब ऐसे गलत लोगों का विरोध ना करो, जैसे कि उनको मतलब उनके गलत डिसीजंस का विरोध करते हो ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करो। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो उनके डायरेक्ट ध्यान में आ जाएगा और फिर वो लोग आपको अलग कैटेगरी में रख सकते हैं और फिर उससे डिसाइड कर सकते हैं कि इनको कैसे ट्रीट करना है। और फेशियल रिकग्निशन से भी वो लोग आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं वो तो देख ही पाएंगे। और इनके पास पूरा डेटा रहेगा, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, आपका इमोशन क्या है। अभी हम जो मोबाइल में देखते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है, वो पूरा ट्रैक चल रहा है। हमें मालूम ही है कि यूट्यूब पे जैसे वीडियो देखेंगे वैसे ही हमें ज़्यादा सजेशन आएगा। तो आगे जाके फिर हमें जो पसंद होगा ऐसे मनोरंजन में ही ऐसा दिखाते रहेंगे तो फुल टाइम उसमें ही घूमते रहेंगे, जिससे आगे जाके आप किसी सार्थक काम में ना लग सको। कोई मतलब सिस्टम कुछ गलत कर रहा हो तो उसका विरोध ना कर सको। आज के युवा को आप देख ही सकते हो कि उसको कैसे एक ऐसी दुनिया में रखा गया है कि वो इस बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। सिर्फ वो ऐसा सोचता है कि मैं एक हैप्पी लाइफ जीऊँ, आजू बाजू में क्या हो रहा है वो कुछ सोचे ही नहीं। तो ऐसा पूरा सब लोगों की एक इंडिविजुअल दुनिया बना के दे देंगे वो लोग कि आप इसमें ही घूमते रहो, जिससे हम अपना काम पूरा करते रहे और आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहो। दूसरा है ऑटो ड्राइविंग कार्स। अभी जो कार चल रही है आगे जाके वो ऑटो ड्राइविंग कार आ जाएगी जिसमें पूरा मतलब ऑटो चलेगा। उसमें भी फिर ये चिप से ही चलेगा कि आप चिप से स्कैन करोगे तो चलेगा। फिर अभी आप विरोध करते हो तो आपके पॉइंट्स घट गए तो आप ऑटो ड्राइविंग कार की सर्विस यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा ला देंगे। फिर ऐसी कार्स को प्रमोट करने के लिए बोल देंगे कि जो आप कार चलाते हो वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में आपके मतलब कुछ भी डिसीजन गलत ले सकते हो या आप बराबर चला नहीं सकते हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपकी कार को भी बैन कर सकते हैं। फिर ऐसा बोलेंगे कि आप ये रोबोट वाली कार ही यूज़ करो। दूसरा, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उनके टॉयस में भी अभी AI आ रहा है। पहले के बच्चे बाहर खेलने जाते थे पर अभी के बच्चों को पेरेंट्स होते हैं वो जॉब पे ही चले जाते हैं, तो उनको सहानुभूति देने के लिए अभी AI टूल्स ला रहे हैं। टॉयस होते हैं जो उसके साथ वो बोलेगा, उसके साथ वो बातचीत करेगा, उसको खाना खिलाएगा, तो वो पूरा भ्रम में रहेगा कि बच्चे को लगेगा कि ये मेरे कितनी देखभाल रख रहा है। तो ऐसे बच्चों को भी पूरा मतलब आगे जाके फ्यूचर ऐसा ही दिख रहा है कि किसी मतलब वाइफ है उसको हस्बैंड चाहिए तो वो रोबोट से शादी करेगी, क्योंकि वो कमांड डाल देंगे कि मुझे ऐसा ऐसा हस्बैंड चाहिए। तो ऐसा वो पूरा कमांड के आधारित वो पति वाला रोबोट बना के दे देंगे। फिर पति को भी ऐसी ऐसी लड़की चाहिए तो वो ऐसी लड़की बना के सप्लाई करेंगे कि ऐसे ऐसे पर्सनालिटी वाली लड़की चाहिए। तो फैमिली यूनिट्स को पूरा डिस्ट्रॉय ये AI से हो सकता है और अभी के बच्चे भी पूरे उसमें। तो आगे जाके सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी
और जो बच्चे हो गए उनके वाइफ या पति वो रोबोट्स हो सकते हैं। और जो बच्चों को भी अभी मतलब पेरेंट्स बिजी रहते हैं तो वो बच्चों को कैसे इंगेज रख सके उसके लिए ये एआई वाले टूल्स रोबोट्स टॉयज लाएंगे कि उसके साथ इंटरेक्शन करते रहे, तो उससे उसमें नैतिकता और संस्कार कुछ आएंगे नहीं, तो उससे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही पूरा उलझा हुआ रहेगा। और आगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑग्यूमेंटेड रियलिटी भी वर्चुअल रियलिटी आ जाएगा। आपने देखा होगा कि ऐसे आँख में आँख पे ऐसे लगा देते हैं तो उसमें पूरी अलग दुनिया दिखती है, उसे वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। तो लोगों को फिर बाहर ही निकलने का वो सब बंद कर देंगे, फिजिकल एक्टिविटी घर में बैठे रहो, सुबह चालू कर दो आँख में पहन के, फिर अपनी पूरी दुनिया में खो जाओ। आपको जहाँ पे जाना है शॉपिंग मॉल में, तो घर में बैठे बैठे आपको ऐसा लगेगा कि मैं शॉपिंग मॉल में घूम रहा हूँ। आपको कोई देश घूमना है तो आप ऐसे आँख में वो पहन लो, आप पूरा देश घूम रहे हो, तो ऐसा पूरा दिखेगा। आप घर पे ही रहोगे और सब आपको दिखेगा। ऐसे ही फिर ऑनलाइन शॉपिंग रहेगा, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी ऐसे ही आपको कोई कहीं पे जाना नहीं है, ऐसे वो पहना वीआर और उसमें दिखा कौन से कपड़े हैं, तो उस हिसाब से वो चूज़ कर पाएंगे कि ऐसे कपड़े मुझे पहनने हैं, वो पहनने हैं। और उसमें भी उनका वर्चुअल अवतार होगा, जैसे आपको फेसबुक में मालूम होता है वर्चुअल अवतार आता है कार्टून टाइप का। जैसे हम कार्टून देखते हैं तो उसमें अलग अलग टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, फिर वो ऐसे अलग अलग कार्टून आते हैं, तो ऐसा आप अपना खुद का अवतार बना सकते हो। मतलब कार्टून जैसे देखते हो वैसे ही आप अपनी पूरी दुनिया अपने बना सकते हो और उसमें ही घूमते रह सकते हो। फिर आपको पार्टी करनी है, तो अभी तो सब लोग ऐसे एक जगह पे मिल के पार्टी करते हैं। अभी फ्यूचर में क्या होगा कि सबने आँख में पहन लिया और पार्टी करेंगे, सब अपने अपने घर पे होंगे, सबको लगेगा वो पहना हुआ होगा तो सबको लगेगा कि हम आमने सामने हैं, तो ऐसे पार्टी करेंगे। फिर अभी हमको मालूम है कि मैरिज हो रहे हैं, तो मैरिज भी फिर वर्चुअल हो जाएंगे, रहेंगे दूर दूर पर मैरिज होगा ऐसे वर्चुअल। और ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपने ऐसा कोई चीज़ मंगानी है तो अभी तो डिलीवरी बॉय आता है, आगे जाके ड्रोन्स ला देंगे कि ड्रोन आपके घर पे आके सामान देके चला जाएगा 5-10 मिनट में। तो ऐसा आप मतलब पूरा सिस्टम ऐसे क्रिएट किया जा रहा है कि आप घर पे ही रहो, बाहर ना निकलो, हम सब आपको घर पे लाके दे देंगे। और एआई का अभी आगे जाके ना सब ह्यूमन बाउंड्री ख़त्म हो जाएगी। अलग अलग देश के कोई भी लोग हो गए, तो ये भाई चाइनीज़ बोल रहे हैं, मैं गुजराती बोलता हूँ, तो मैं बोलूँगा गुजराती, वो चाइनीज़ बोलेंगे, पर समझ में दोनों को उनकी भाषा आएगी। यहाँ पे ईयरिंग आएगा, ईयरिंग पहन लेंगे तो वो जो भी बोलेगा उसका ट्रांसलेशन मेरे माइंड यहाँ से सुनाई देगा। तो ऐसे दोनों का ट्रांसलेशन एक दूसरे को सुनाई देगा और दोनों अपनी अपनी भाषा में इंटरेक्शन कर पाएंगे। और रोबोट्स की तरह आता है कोबोट्स। रोबोट्स को हम जो बोलते हैं वो करता जाता है। वैसे कोबोट्स क्या होता है, वो हमें देख के सीख के हमारे जैसा करता है। तो आगे जाके इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 टाइप होता है। एक ऑटोमेटिक काम करता है, दूसरा होता है ऑटो एक्सप्लोरेटेशनल, तो वो अपनी तरीके से थिंकिंग करके करता रहता है। और ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो अपने तरीके से दूसरे से इंफॉर्मेशन लेके, ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके खुद का थिंकिंग बना के वो आगे काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें देख के ऐसा लग रहा है कि आगे जाके ये मतलब हमें ना नेचर से, कुदरत से, फिर फैमिली से अलग करने में बहुत बड़ा इसका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इसकी बारे में अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा कि दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे एआई आएगा तो डिप्रेशन के केसेस बहुत बढ़ जाने वाले हैं। डिप्रेशन, क्योंकि लोगों से बात नहीं करेंगे, कोई किसी से मिलेंगे नहीं, तो डिप्रेशन में रहेंगे। और एआई से ही बीमार हो गए, फिर एआई उसका सॉल्यूशन देंगे। कैसे अलग अलग रोबोट्स देके कि आप ये वाला रोबोट ट्राई करो, इससे आपको अच्छी सहानुभूति मिलेगी, तो पूरा उनका ही ये एक सिस्टम बना देंगे। तो और मीडिया को फिर जो एंकरिंग होते हैं, जो अभी एंकर ऐसे देख के रिपोर्ट लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उसको लाइव करते हैं, पर आगे जाके रोबोट्स ही आ जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरा हूबहू वर्चुअल रियलिटी आ जाएगा, वो उसमें कमांड डाल दिया कि ये न्यूज़ बोलो, तो फिर वो न्यूज़ बोलेगा और लोगों को लगेगा मैं बोल रहा हूँ, पर वो रोबोट बोलेगा। तो ऐसे सभी जगह पे
वर्चुअल रियलिटी काम करेगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि एआई के बारे में अच्छी बात भी बहुत है और बुरी बात भी बहुत है, और तो उसमें बैलेंस हम कैसा रख सके उसके ऊपर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और साइड में ऐसा अल्टरनेटिव सिस्टम भी हम खड़ा करें कि जैसे ये नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उसको कैसे हम कम कर सके, उसकी एक टाइम लाइन फिक्स कर सकते हैं कि हर सिटीज़न इतना ही यूज़ कर सकता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, तो उससे उनको एडिक्शन ना रहे। और जो सेंट्रलाइजेशन है वो कैसे उसका कम हो सके और इसको प्रॉफिट के लिए यूज़ ना किया जा सके। एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसका भी इंटेंशन सेवा करने का हो वही एआई पे काम कर सकता है, जिसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का हो वो एआई पे काम ना करे। अगर इतना काम हो जाता है तो बहुत राहत मिल सकती है हमको, इसका जो नुकसान होने वाला जो रिज़ल्ट आ सकता है उससे। धन्यवाद।